والشهادة فإنكم كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاصبروا إلى الذين آمنوا يؤمنون بذلك كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا لم تجاهدوا ولا تقاتلوا الذين تجاهدوا الله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله وارسلنا عن سبيل الله عن سبيل الله ما كانوا يعملون ذلك بأنهم أنفسهم كتب عليكم منهم ولا يفقهون وإذا يعرفوا عن لسان وإن تسمعوا لقول كأنهم خشب نصر وحسبون كل صيحة وعليهم لعنة قادر قادرون أن يشركون ولا قيل لهم تعالوا يستغفرون السلام علیکم. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج سلمان کی دوسری برسی ہے اور ہم لوگ قرآن خوانی کرا رہے ہیں اور سب اپنے ملنے جلنے والے جتنے لوگ ہیں سب آ رہے ہیں اور بڑے دکھ کے ساتھ بتانا پڑتا ہے کہ آج میرے بیٹے کو 2 سال ہو گئے اور دنیا کی ہر چیز ہے لیکن جو اس کی کمی ہے جو وہ پل پل یاد آتا ہے وہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں جب سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے میں نے میرا خیال ہے 2 سال میں اس کی 2 سالگرہ بھی منائی ہے اور دوسری برسی بھی منا رہی ہوں اور جب تک میری زندگی ہے میں اس کے سارے ایونٹ کروں گی انشاءاللہ تعالی. اللہ نے مجھے ہمت دی, زندگی دی, تو اسی طرح یہ سارا سلسلہ چلتا رہے گا. تو آپ لوگ بھی اسپیشل دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور سلمان کے لیے بہت ساری دعائیں کیا کریں. بہت شکریہ آپ کی دردانہ رحمان. آج جو آئے گا آپ کے سامنے وہ بھی دیکھیں گے آپ کے مطلب کتنے لوگ سلمان سے میرے علاوہ کتنے لوگ محبت کرتے تھے. وہ میرا خیال ہے سبھی کا بیٹا تھا اور بڑی بڑی دور سے آج لوگ آ رہے ہیں. تو دکھ اپنی جگہ ہے لیکن لوگوں کی محبت اپنی جگہ ہے. مطلب کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو جس نے سنا ہو تو اس نے یہ نہ کہو کہ ہم ضرور آئیں گے. اور ماشاءاللہ آج آپ کے سامنے سب کچھ. تو آگے دکھاتے ہیں آپ کو کون کون ہمارے ساتھ جڑے گا. انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے آگے ملاقات ہوتی ہے. لم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلة الحسين ومولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه. آپ کو پتہ ہے شام سے ہم لوگ ماشاءاللہ سلمان میرا ہی نہیں پورے پاکستان کا بیٹا ہے. ہر بندہ اس کے لیے آ رہا ہے, کوئی چکوال سے, کوئی پنڈی سے, کوئی کراچی سے. اتنا خوش نصیب بچہ تھا اور بہت زیادہ اس کا آج بھی جو ہے نا وہ خیال آتا ہے. تو اس کی کزن شین صاحبہ اور ان سے بات کرتے ہیں, وہ بھی آئی ہیں. جی شین جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر بالکل ٹھیک ٹھاک. آج آپ کو سلمان کی تو بہت یاد آ رہی ہوگی. بے شک بالکل ایسا ہی ہے کہ بہت ایک ایسی شخصیت تھی اس کی کہ سب سے پیار لینا, سب سے ملنا, اور اگر کسی کے آپس میں جیسے فیملی میں جھگڑے ہو جاتے ہیں تو اس کی کوشش ہوتی تھی کہ سارے مل کے رہیں, سب کی صلح رہے, آپس میں ملنا جلنا, اور بہت پیار کرنے والا اور پیار دینے والا اور پیار لینے والا بچہ تھا. اچھا شین جی, وہ تو آپ کا کزن کے علاوہ آپ کا بہنوئی بھی تو تھا نا, آپ کی چھوٹی سسٹر سلمان کی بیوی تھی, اور اس کے حوالے سے تو آپ کو زیادہ فیلنگ آتی ہوگی
کہ اس کو اتنی جلدی نہیں جانا چاہیے تھا. بس یہ اللہ کی مرضی ہے. ہم لوگ دیکھیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کی رضا میں ہی راضی رہنا چاہیے. اب اللہ کی رضا ہے. اور میری بہن کے لیے میں یہی کہوں گی کہ اس نے ظاہر ہے یہ بہت کم عمر میں ایک صدمہ دیکھا ہے, اور اللہ اس کو صبر دے. اور اس کے لیے تو بہت بڑا لاس ہے, جیسے آپ کے لیے بہت بڑا ہے, کیونکہ بہت نزدیکی رشتے ہیں دونوں. بالکل بالکل. تو دونوں کے لیے میرے دل سے بہت دعا نکلتی ہے ہمیشہ کہ آپ دونوں کو اللہ صبر دے, کیونکہ یہ خلا کبھی بھری نہیں جا سکتی. کبھی نہیں. رشتے زندگی میں ایسے ہوتے ہیں, جو رشتے آپ اگر اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں اور آپ ایک دوسرے کی فیملی ہوتے ہیں, تو وہ آپ کوئی بھی رشتہ کسی دوسرے رشتے کی جگہ نہیں لے سکتا. اور خامند اور بیٹے کے رشتے کی جگہ تو کوئی بھی نہیں لے سکتا. جی بالکل بالکل. سلامت رہیں, خوش رہیں. آپ کا آ جانا میرے واسطے مجھے ایک حوصلہ ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے میرا کوئی ہے. سبھی مجھے بہت پیار کرتے ہیں, اور سلمان کو بھی سب پیار کرتے تھے. لیکن آج بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے, ہم سب ہیں, ہم سب کھا پی رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن سلمان نہیں ہے. اس کی بہت یادیں میرے ساتھ ہیں. مجھے لمحے لمحے وہ یاد آتا ہے. اور بڑے دل سے میں, جب تک میری زندگی ہے, پچھلے دنوں میں دوستوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اس کی سالگرہ کا بھی کیک کاٹا تھا, اور دوسری برسی ہے اس کی. اور جب تک میری زندگی ہے انشاءاللہ تعالی میں اسی طرح اس کی برسی بھی کروں گی, اس کا کیک بھی کاٹوں گی, اس کی سالگرہ بھی کروں گی. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ مسز ببو برار صوبیہ ہمارے ساتھ ہیں, اور ان کا بھی سلمان بہت لاڈلا تھا. مجھے یاد ہے کہ جب سلمان کا 40واں تھا تو صوبیہ نے کہا جی میں نے کھانا نہیں کھانا. تو میں نے کہا کیوں, سب کھا رہے ہیں؟ کہتی نہیں, میں نے اس کے ولیمے کا کھانا کھایا ہوا, میں اس کے 40ویں کا کھانا نہیں کھاؤں گی. اور جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے صوبیہ ہمارے گھر ضرور آتی ہیں, اور بڑا سلمان سے پیار کرتی. جی صوبیہ جی کی کہو گے تسی؟ السلام علیکم. وعلیکم. ਦੁਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ. ਆਮੀਨ. ਉਹ ਬੱਚਾ, ਬਸ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ. ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ. ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਪਲੀਜ਼, ਅੱਲਾਹ ਉਹਦੀ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਟ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ. ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. کوئی بات. یہ جی ان کی محبت اور ان کے جذبات اور ان کے احساسات تھے. تو آگے دیکھتے ہیں جو ہمارے ساتھ آئے گا ان کے ہم کومنٹس لیں گے. بہت شکریہ. حال سے اپنے بیٹے سلمان کی برسی پہ آئی ہیں. السلام علیکم عالیہ جی. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. آپ ہمیشہ میرے بچوں کو اپنا بچہ سمجھتی ہیں. جب بھی فون پہ بات ہوتی ہے آپ یہ کہتی ہیں میرے بچے کا کیا حال ہے. تو ابھی بھی جب آپ سے بات ہوتی ہے تو آپ سلمان کو نہیں بھولتی, آپ فوراً کہتی ہیں میرے سلمان کا کیا ہے. بہت پیارا بچہ تھا, بہت پیارا, بہت عزیز تھا ہمیں. میرے ہاتھوں میں بے شک بات اتنا تھا. اللہ سے جنتوں میں گھر دے, آمین. اللہ سے اعلیٰ مقام عطا کرے, اور تمہیں اللہ صبر دے. آمین آمین. صبر دے. عالیہ بیگم صبر کے علاوہ جی, یہ میری اتنی پیاری بہن ہے, اور مجھے ان سے اتنا پیار ہے کہ یہ اس وقت فلموں میں کام نہیں کر رہے, لیکن میں ہمیشہ ان کے ساتھ فون پہ رابطے میں رہتی ہوں. اور آج مجھے اتنا اچھا لگا کہ ان کو سلمان, میں نے ان کو فون کیا کہ سلمان کی برسی ہے, تو انہوں نے کہا میں ضرور آؤں گی. تو یہ آئی ہیں, آتی انہوں نے مجھے فون کیا, میں دردانہ آ گئی ہوں. تو آج انہوں نے شرکت کی, اور جب سلمان کی ڈیتھ ہوئی تو یہ فوراً پہنچی. اور یہ باتیں بھولنے والی نہیں ہیں, اور میں تو ان کی اتنی قدردان ہوں, اتنی ان سے محبت کرتی ہوں, ہمیشہ ان کی سلامتی کی دعا کرتی ہوں. تو عالیہ بیگم اور آپ کیا کہیں گی کہ آپ نے کام بالکل چھوڑ دیا؟ میں نے چھوڑ دیا ہے, مطلب چھوڑا کہ ایک مصروفیت تک وہ جی. بھی زندگی دیکھا جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھی تھی. جی بالکل. بہت اچھی گزاری ہے, بہت اچھا وقت گزرا ہے. جی. اور یہ ہے کہ یہ جو ہے پھر بچوں کے آگے سے پھر خاندان, اس میں بہت زیادہ مصروفیت ہو جاتی ہے, تو پھر ایک طرف ہی میرا خیال ہے توجہ دینی چاہیے نا. جی. اس وجہ سے ابھی پچھلے دنوں میں سید نور صاحب میرے گھر آئے ہوئے تھے, تو میں نے عالیہ بیگم سے پتہ نہیں بات کی, تو انہوں نے ان کو مجھے کہا جی میری بات کروائیں.
मैं आलिया बेगम से बात करना चाहता हूँ। मैंने आलिया बेगम को फ़ोन किया, आलिया बेगम ने उनसे भी बात की, सैयद नूर साहब से। फिर उन्होंने मुझे कहा जी आप आलिया बेगम से बात करें, पहले तो मैं उनका डिनर करूँगा, साइमा और मैं, आप लोग सब आएँ आलिया बेगम को लेके, फिर उनसे पूछें कि मैं उनको फ़िल्म में लेना चाहता हूँ। मेरी हसरत है कि मैं आलिया बेगम के साथ काम करूँ। तो अभी मुझे पिछले दिनों में फिर मिले, उनसे मेरी मुलाकात रहती है आए दिन किसी न किसी इवेंट पे। तो मैंने उन्हें कहा, मैंने आलिया बेगम से पूछा कि आलिया बेगम आप काम करेंगी, सैयद नूर साहब आपको लेना चाहते हैं। तो मैडम को लाखों की ऑफ़र है, तो इन्होंने आगे से यही कहा कि नहीं, मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे अपनी फैमिली में। और बहरहाल ये है कि मुझे बहुत खुशी हुई है, बहुत अच्छा लगा है कि नूर साहब ने मुझे कहा है, पूछा, और याद करते हैं वो लोग, मुझे बहुत अच्छा। आलिया बेगम आपको बहुत पूरी अच्छी फिल्म इंडस्ट्री याद करती है, लोग मेरे साथ रब्ता करते हैं जी आलिया बेगम से पूछें कि वो काम करेंगी। लाखों की ऑफ़र, ये भी नहीं कि छोटे मोटे पैसे, लेकिन आलिया बेगम में मैंने देखा है कि इन्हें कोई लालच नहीं। पिछले दिनों में मेरी एक दोस्त है आसमा भट्ट, उन्होंने इनको एक इवेंट पे गेस्ट करना था ना, तो उन्होंने मुझे इनके लिए कहा कि आप 2 लाख रुपए मेरे से पकड़ लें, तो आप आलिया बेगम को डन करें और उनका जो किराया लगेगा चकवाल से लाहौर तक वो भी मैं दूंगी। तो मैंने आलिया बेगम को कहा, लेकिन आलिया बेगम शादी में मसरूफ़ थी, लेकिन कि असल में वो करना ही नहीं चाह रही थी। तो लेकिन आलिया बेगम, लोग आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं। सबकी बहुत मशकूर हूँ, और मैं अल्लाह ताला का जितना करम नवाजी है, परवरदिगार के अल्लाह ताला का बहुत करम है कि अब भी लोग मुझे इतना चाहते हैं। बहुत आलिया बेगम तुसी तो लोगों ने ना एक लोग कहते हैं ये आपके इतने दीवाने हैं, कम ही आर्टिस्टों के इतने दीवाने होते हैं। बाबरा शरीफ साहब आपको बहुत पसंद करती हैं, मुझे प्यारी खातून, हाँ अक्सर मुझे पूछती हैं जब आएँ तो मुझे बुला लेना, ये सारा वो। अच्छा आलिया बेगम, आपकी बहन ने दुर्दाना रहमान ऑफिशियल बनाया, तो आप देखती हैं? मैं सॉरी, बस मैं क्या कहूँ, देखा कभी नहीं। बच्चे तो बताते होंगे ना आपको, बच्चे बताते हैं, और काफ़ी आपका जिक्र मैं गैबाना आपका इंटरव्यू करती रहती हूँ, ये तो मुझे पता है। हाँ जी, मेरी बड़ी ख्वाहिश है जी आलिया बेगम का मैं इंडिपेंडेंट आधे घंटे का इंटरव्यू करूं। नहीं, ये तो सब बरसी का ये तो आपने बरसी का इंटरव्यू दिया ना, लेकिन जब आप इंशाल्लाह फ्रेश होंगी, जब आपका मूड होगा, ये नहीं ज़बरदस्ती, जब मेरी बहन का मूड होगा इंशाल्लाह ताला मैं आपके सामने इनको लेके आऊँगी। आज भी आप देखेंगे, आप बहुत खुश हो जाएंगे। मौका तो ऐसा नहीं है, लेकिन आप ये क्यों आप लोगों ने मुझे इतने कमेंट्स किए हैं कि जी आप आलिया जी को लेके आएँ, आलिया जी को लेके आएँ, तो मैंने बहुत दफ़ा कोशिश भी की, लेकिन इनकी कुछ मसरूफियात थी। लेकिन इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आलिया बेगम को मेरे चैनल पे देखेंगे, और जब ये मेरे चैनल पे आएंगी तो मेरा चैनल मुकम्मल चैनल होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत वाकई सही बात है। मैं अकेली बैठी हूँ, कोई ऐसी बात हो ना, सबसे पहले आपका चेहरा आएगा मेरे सामने। बिल्कुल बिल्कुल, मोहब्बत करने वाली, इतनी प्यार करने वाली सब करते हैं बेशक, जी बिल्कुल। लेकिन आपकी क्या बात है आपकी क्या बात है। थैंक यू आलिया जी, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती। मेरी तो आप फेवरेट सारी ज़िंदगी रही हैं। मैंने तो आपको देख देख के काम किया, मैंने आपकी नकल उतारने की कोशिश की है कि मैं भी आलिया जैसी लगूं, लेकिन आपका मुकाम तो आपका, लेकिन मैंने भी कोशिश की है मैं कि आप जैसा कामयाब नहीं हो कोशिश में। जी बहुत अच्छा काम किया, हाँ जी, जितना भी काम किया बहुत अच्छा काम किया। आपने मेरी तारीफ कर दी, मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है। और सबसे बड़ी बात है कि आप वैसे बहुत अच्छी हो। थैंक यू आलिया जी। काम तो अपनी जगह पे, एक इंसान की तबीयत होती है कि एक अरसे से मैं देख रही हूँ, बाकी ना कोई तकब्बुर, ना कोई गरूर, ना कुछ, ना मेरे में कोई फर्क आया है ना, कि पहले दिन से लेके आज तक मैंने आपसे प्यार किया। मुझे ये ऐसे ही लगता है कि जैसे मेरा अपना आप सामने है, जैसे होता है ना, जैसे एक आईना होता है, हाँ जी, कि जैसे मैं रही हूँ ना, हाँ जी, जिस तरह भी है, लेकिन मेरा दिल साफ रहा है, आप सादा रही हैं सारी जिंदगी, इसी तरह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और जिससे भी मैं मिली हूँ दिल से मिली हूँ, जो भी है लोग आते हैं, मिलते हैं, हाँ बैठते हैं, ये एक बरकत होती है। जी बिल्कुल, बरकत होती है, बिल्कुल बिल्कुल, कि लोग आपके घर आना पसंद करते हैं, आपसे मिलते हैं, मोहब्बत करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जी। थैंक यू आलिया जी, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मेरे दिल की आज हसरत पूरी हो गई है, और इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों से वादा करती हूँ मैं आलिया बेगम को आपसे आधे घंटे की गुफ्तगू करवाऊंगी।
अभी भी मेरा 5-10 मिनट तो हो ही गए हैं, लेकिन ये आज कुछ मौका और है। लेकिन जो आपकी ख्वाहिश है ना कि आपने हमेशा मुझे कमेंट्स किया है जी आलिया बेगम का इंटरव्यू, आलिया बेगम का इंटरव्यू, तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपसे वादा रहा आलिया बेगम को आप मेरे चैनल पे देखेंगे। दोस्तों बहुत शुक्रिया, ये मेरी भी खुश नसीबी है, आपकी भी खुश नसीबी है कि आज आप लाइव आलिया बेगम को मेरे साथ देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया जी, बहुत शुक्रिया जी, सलामत रहो। थैंक यू जी, थैंक यू। मैडम है आलिया बेगम, अल्लाह इनको सलामत रखे और ये मज़ा मेरी बच्ची शहबाज अली शाह जी, सैयद बादशाह, हम लोग बड़े खुश नसीब हैं कि सलमान की बरसी में भी ये आए। और हालांकि इन्होंने सलमान को देखा नहीं है लाइव, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा दुख का इजहार किया और पहले भी आए, अफसोस किया। जी शाह जी क्या कहेंगे आप? बस जी वो सलेमान साहब की दूसरी बरसी है जी, सुलेमान रहमान साहब की, तो आपने मुझे फ़ोन किया तो मैंने आना ज़रूरी समझा, क्योंकि मैं आपको बहन कहता हूँ, तो जब बहन बुलाए तो भाई तो आता ही जी आता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप बड़ी मोहब्बत से आते हैं हमेशा, और वाकई आप मुझे अपनी बहन समझते हैं, जैसे भाई एक बहन की तरफ जाता है। और बहुत ज़्यादा वो कहते ना पंजाबी च वर्तेवा करना, इस तरह ये मेरे भाई शहबाज साहब मेरे पास आते हैं। और अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और इसी तरह ये हमारे सर पे हाथ रखें। अल्लाह के बाद ये लोग हैं जो मुझे सब प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। आप कुछ सलमान के लिए कुछ लफ्ज़ कहना चाह रहे थे? देखो जी, बात यह है कि पहले तो बात आपकी करूँगा ना, आप मर्दों की तरह ये काम कर रही हैं सारा, आप जुदाई को इतना टाइम नहीं देते, आप ये ऐसे ही कर रहे हैं कि जैसे सुलेमान रहमान इधर ही है। हाँ जी, मुझे यही लगता ये है। मेरी बहनें आई हैं सारी, हाँ जी, और ये भी आपके बुलावे पर ही आई हैं। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। तो अल्लाह पाक उनकी मफ़रत फरमाए, आमीन। दुआ करते हैं जिस कब्रिस्तान में है उनकी मफ़रत फरमाए। यहाँ पे जहाँ जितनी बाजियाँ बैठी हुई हैं, इनके जितनी नस्लें बड़ी गई हैं इस जहान फ़ानी से, अल्लाह पाक उनकी भी मफ़रत फरमाए। आमीन। मैं इनको जानता नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह तो इनको जानता है, अली तो इनको जानता है, मौला तो इनको जानता है। बेशक। तो मैं एक कसीदे की एक लाइन पढ़ दूँगा, तो हालांकि मैं तो सुनता हूँ, पढ़ता पढ़ता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं बाजी ने बुलाया तो एक लाइन पढ़ दूँगा, और थोड़ा सा मेरे साथ पढ़ लेना। जी जी बिस्मिल्लाह। अगर अच्छा लगा तो पढ़ देना, ना अच्छा लगा तो मैं अकेले जी पढ़ जी लूँगा। जी जी। हो पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, और सारे वो मिलके सुना वो होए नारायणीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, और सारे सुना वो मिलके सुना वो हो नारायणीदा, पढ़ना कसीदा बस पढ़ना कसीदा। बस पढ़ना कसीदा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह 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 जी, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह सकता था। जी।
जितना जो मुझे आता नहीं नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा, आपने अपनी ड्यूटी बड़ी अच्छी निभाई। अब हमारे साथ रुखसार भी आ गई, इनसे सलमान के लिए ज़रूर आती हैं, और पिछले दिनों में ये बहुत बीमार थी, अल्लाह ने इनको शफा दी, अल्लाह ने इनको सेहत दी, और ये अपने कदमों पे चल के आई हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। जी सबा जी क्या कहेंगी सलमान के लिए आप? सलमान हमारा बेटा है, उसको हम तो मिस करते हैं, भूल नहीं सकते। वो हम जब भी इधर आते हैं हमें ऐसे लगता है जैसे अभी आएगा, कहेगा आंटी कुछ खाना है। वो बड़ा ख्याल रखता था हमारा। अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह पर उस पर अपनी रहमतें बरसाए। हम उनके लिए दुआ करें। आमीन। सलमान मेरा बेटा नहीं, पूरे पाकिस्तान का बेटा है। सबका बेटा। आप यकीन करेंगे आज कोई गुजरांवाले से, कोई चकवाल से, कोई पिंडी से, जहाँ जहाँ लोग मेरे मिलने वाले रहते हैं सब यहाँ पे आ चुके हैं। और मैं मतलब ये देख रही हूँ कि सलमान, मैं तो एक माँ थी ना, तो एक माँ का तो और बात होती है, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि सलमान सबका बेटा है, हर बंदे ने उससे प्यार किया, हर जितने मेरे मिलने वाले हैं वो सबका लाडला था, और आज भी हमारे साथ है। रुखसार जी हमारे साथ हैं, ये भी आज सलमान की दूसरी बरसी है तो आई हुई हैं, तो इनसे बात करते हैं। जी रुखसार जी क्या कहेंगी आप? सलमान को तो आप मिली हुई है ना? जी जी, पहले तो मेरी तरफ से आपको सलाम है दुर्दाना जी वालेकुम सलाम। और जहाँ तक मैं बेटे की बात करूँगी, सलमान की बात करूँगी, तो जो औलाद होती है वो बड़ी कीमती होती है हर इंसान के लिए, बेशक, और वो भुलाई नहीं जाती। तो हमें तो यही लगता है कि सलमान हमारे साथ है, बिल्कुल बिल्कुल, वो हमसे दूर नहीं है। जी बिल्कुल, बहरहाल जो रब की मर्जी होती है होता वही है, बेशक बेशक, हम उसको जो है छुटला नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल, और हम अल्लाह ताला की जो रज़ा है उसमें राज़ी हैं। बेशक बेशक, तो अल्लाह पाक उसको जन्नत और फिरदौस में जगह अता फरमाए, और अल्लाह ताला आपको उसकी तरफ से आपका दिल बिल्कुल सुकून में रखे परवरदिगार, मेरी ये दुआ है। और बस बहरहाल ये है कि दुख तो है, बेशक वो रहेगा सारी ज़िंदगी, लेकिन अल्लाह पाक उसकी माफ़रत फरमाए, अल्लाह पाक उस आमीन दर्जे बुलंद करे। मेरी तरफ से उसके लिए बहुत दुआएं हैं, हर माँ की तरफ से उसके लिए बहुत दुआएं हैं। बहुत शुक्रिया। और ये हमेशा मेरे साथ रहती हैं, हर वीडियो में मेरे साथ होती हैं, हर पल मेरे साथ होती हैं, इनके तासरात सुन लेते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। दुर्दाना जी क्या कहूँ, आप तो माँ हैं, तो हम भी उसकी खाला हैं, तो हमें तो वो वक्त भी याद है जब वो छोटा सा था, तो हम उसकी सालगिरह मनाते थे बड़े जोश खरोश से। और आप भी उसका केक काटती हैं 30 अक्टूबर को। बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी काटा है, मैं भी आई हूँ, आप भी हैं, लेकिन आप माँ तो माँ ही होती है ना, जी, केक बिल्कुल, तो काटती हैं। बिल्कुल। तो बस दुआओं में फ़र्क आ जाता है। जब वो जिंदा था तो हम कहते थे कि सुलेमान मेरे लिए ये लेके आओ, खुश रहो, सलामत रहो, ज़िंदगी अल्लाह ताला दे तुम्हें। ये अब दुआएं चेंज हो गई है, अब यही कहते हैं कि अल्लाह पाक से आप उसकी मफ़रत फरमाए, उसको बख्शिश करे, उसकी अल्लाह पाक उसको अपने नेक बंदों में शामिल करे। तो हमारी तो दिल से दुआ है और हर वक्त निकलती है। तो हमें तो उसकी सालगिरह का दिन भी दुर्दाना जी नहीं भूलता था, तो आप अभी भी याद करती हैं, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो आज उसकी दूसरी बरसी हो गई है, वक्त का पता नहीं चलता। कल सब नहीं जाना है, किसी ने जाना है, किसी ने आना है, अल्लाह पाक ये सिलसिला चलता रहता है। तो बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक उसकी मफ़रत फरमाए, आमीन। आप सब भी दुआ कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया। मेरे साथ बीना सर खड़े हो जाए। जी बच्ची, ये इनका भी बहुत लाडला था सलमान, और बहुत प्यार करती थी। मेरी बाजी भी लाडली है, मेरी इनकी बेटी भी लाडली है, और सलमान तो वैसे ही लाडला था और बहुत प्यारा बच्चा था, और ताबेदार, इज़्ज़त, रिस्पेक्ट करने वाला। मैं नहीं कहती कि वो उसमें कोई गलती थी या वो कोई गलती करता था, वो पाक गया और पाक ही रहेगा। सुभान अल्लाह। और ये बात ये कि ये अल्लाह की ये मानते हैं, सब ने जाना है, हमने भी जाना है। तो वो जाके भी माँ को राज़ी कर दिया, बिल्कुल, और था तो तब भी माँ राज़ी थी। और मेरी यही दुआ है कि मेरी बाजी का कलेजा ठंडा रहे, बस। थैंक यू, कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू बीना जी। नादिया अली जो कि सलमान की खाला है और मेरी सबसे छोटी बहन है। अभी जैसे आपने शीन के तासरात सुने, और अब हम नादिया जी के सुनेंगे। नादिया जी क्या कहती हैं? जी नादिया जी क्या कहेंगी? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। और सबसे पहले तो ये कि मुझे तो लगता है कि सुलेमान दुनिया से गया है। यकीन करें, पल पल जब उसका जिक्र होता है, मैं तो हर जो 5 वक्त की नमाज में बख्शती हूँ उसको,
जितनी भी पढ़ाई करती हूँ। और दूसरी बात, जब ये एक दिन पहले माहम की बर्थडे होती है वो हम लोग सेलिब्रेट नहीं करते, ज़ाहिर है इसलिए कि अगले दिन उसकी डेथ है, क्योंकि उसी रात ये मुझे जहाँ तक क्योंकि मैं सोई थी, मुझे सुबह पता चला था जब ये कहते हैं हम हमारा दिल ही नहीं किया हम बर्थडे सेलिब्रेट करें। अब वो वही समझे कि कंटिन्यू तीसरा साल हो गया कि माहम की बड़ी जैसे बर्थडे होती थी वो नहीं होती, और उसकी बरसी का दिन है आज, और सब लोग वैसे ही प्यार मोहब्बत करते हैं। वो तो बख्शा हुआ बच्चा है, और मैं तो उसको सारी ज़िंदगी जब उसकी शक्ल आती है, यानी रात को ही मैं जब ये सोच रही थी हाय कल उसकी बरसी है, आज दूसरा साल मुकम्मल हो गया, पता है कल की बात है, तीसरा साल शुरू हो गया। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे वो आता था जल्द बोलता था, फास्ट हर बात ये बात सारा भाग दौड़ वो करता है, ये नहीं आज समझो कि सालगिरह पे माहम का सारी सेलिब्रेशन की तैयारियां वो करता होता था, बिल्कुल बिल्कुल होती थी, बिल्कुल, इनको पता नहीं बस केक आना है तो सालगिरह होती है, ऐसे भाग दौड़ हल्ला गुल्ला। अच्छा अल्लाह ताला सानिया पैदा करे, उसका आमीन आमीन और आपको सब्र दे, और जिस तरीके से बाजी उसकी एक एक इवेंट उसका सेलिब्रेट करती है, हर जगह उसका जिक्र होता है, उसकी वजह से आज समझे कि बाजी के पीछे अब बाजी अकेली नहीं है, सलमान मेरे साथ ही होता है। मुझे इतनी खुशी होती है जब कहती मैं आज जुमेरात है मैं उत्थे गई, मैं स्पेशल जुमेरात को फोन मैं जाती हूँ, हाँ मैं उत्थे जा रही हूँ, मैं हर जुमेरात ऐसे जाती हूँ किसी दरबार पे जैसे जाते हैं, ऐसे ही बिल्कुल बिल्कुल, उसको सुकून मिलता है, बिल्कुल जी बिल्कुल जी। बहुत शुक्रिया नादिया। इशरत चौधरी साहबा बैठी हैं, ये मेरी बहुत पुरानी दोस्त हैं, सलमान माहम इनके सामने पैदा हुए। जब सलमान का हकीका रखा तो इशरत साहबा उसका सूट मेरा सूट, इतनी मोहब्बत से मैंने तोहफे लेने देने इन्हीं से सीखे हैं कि मुझे ये नहीं पता होता था कि कहीं तोहफ़ा कैसे देते हैं, कैसे क्या होता है। तो ये आज भी मेरी जब तक ज़िंदगी है हम लोग मिलते रहेंगे। ये जितने दोस्त आप देख रहे हैं सब पुराने, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे जी। इशरत जी मेरे तो हाथों में पैदा हुए हैं दोनों बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन अल्लाह की मर्जी, हाथों में आए और हाथों में चले गए, उसकी रजा के सामने कुछ नहीं हो सकता। बेशक उसकी रजा बेशक में राजी, बस अल्लाह आपको सब्र दे अल्लाह तुझे, और अल्लाह ताला उसकी इतनी अच्छी आखिरत करे, आखिरत करे, दर्जात बुलंद करे उसके, अल्लाह आपको सुकून अता फरमाए, और अल्लाह बेटी के भी नसीब बहुत अच्छे, आमीन अल्लाह ताला आपकी बेटी के बहुत अच्छे नसीब करे, आमीन आमीन। अल्लाह आपको भी ज़िंदगी दे, सेहत दे, और हमेशा इशरत जी मेरी हर इवेंट में आती हैं, चाहे शाम कलंदर हो, खुशी में आऊँ ना आऊँ। आज भी एक बात हो रही थी, कुछ मसरूफियत थी कि मतलब मुझे किसी ने कहा मिस कर दो, मैंने कहा मैं खुशी तो मिस कर सकती हूँ, सलमान का ये वाला मैं नहीं मिस कर सकती, सॉरी। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने जाना ही जाना है। थैंक यू इशरत जी। कोई इवेंट को खुशी वाला होता तो मैं कई दफा नहीं भी आती, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बच्चे के मसले में मैं बहुत अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे। आप लोगों के सहारे की वजह से मैं भी ज़रा सही हूँ, वरना आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना हमेशा सहारा दिया है कि अल्लाह के बाद मेरे दोस्त इतने अच्छे हैं, मुझे इतना प्यार देते हैं और मेरी हर खुशी गमी में आते हैं। बहुत शुक्रिया इशरत जी। जी मेरे साथ कैंडी जी हैं, और हमेशा इन्होंने मेरे बच्चों को अपना बच्चा समझा, हमेशा प्यार किया, और आज इनसे बात करते हैं। जी कैंडी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दुदाना जी कैसी हैं आप? ठीक हैं जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सलमान माशाल्लाह बहुत अच्छा, बड़ा प्यार करने वाला बच्चा था, जब भी आना इतना प्यार करना है, कैंडी जी इधर आए, कैंडी जी इधर आए, कैंडी जी ये ले, बोले कैंडी जी आपने नहीं जाना, हम इकट्ठे बैठ के खाना खाएंगे, और आपने तो उसकी हर बर्थडे अटेंड की हुई है। प्यार करना, इतना प्यार करना, मेरी बात माननी, इसको समझाना, अल्लाह ताला उसको करवट जन्नत दे। बहुत अच्छा बच्चा था, माँ का सरमाया था, माँ इतना प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी, अल्लाह ताला उसको करवट जन्नत दे, मार्फत फरमाए उसकी। और माँ इसी तरह ही खुशियाँ करती थी, आज माँ उसी तरह उसके गम में वही उसी जोश खरोश से मैं करती हूँ, मनाती हैं। जी बिल्कुल। अल्लाह ताला माँ को उससे तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे, अल्लाह उसकी बहन के नसीब अच्छे करे, आमीन आमीन आमीन। इसी तरह ही घर में महफिलें जमाती रहे, आमीन, और अल्लाह जल्द से जल्द
جی नसीब खोले। आमीन आमीन। कि हमारी दिली दुआ है, मैं हर वक्त दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इसके बहुत अच्छे नसीब खोले और आपको सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे और हिम्मत दे आपको। थैंक यू कैंडी जी, सलामत रहें। और आपने तो बहुत साथ दिया हमेशा। मेरे साथ सिंगर निर्मल शाह हैं और ये जब सलमान की डेथ हुई तो ये अमेरिका में थी और इन्होंने रो रो के मुझे वहाँ से फ़ोन किए कि ये ख़बर जो मैंने सुनी है ये सच है। तो जब मैं रो पड़ी आगे से तो इन्होंने बेहद अफसोस का इजहार किया और बड़ा दुख किया। और हम इनसे पूछते हैं कि सलमान के बारे में क्या कहेंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। बात यह है कि कुछ नुकसान इस तरह के हो जाते हैं लाइफ में जो पूरे नहीं हो पाते। तो ये वो नुकसान है जो इस घर का हुआ है और बस अल्लाह पाक इनको सब्र दे और उसको अल्लाह पाक जन्नत में आला मकाम दे, क्योंकि आज का जो दिन है ये हमारे लिए हर रोज़ इसी तरह हम उसे याद करते हैं और याद करते रहेंगे, क्योंकि कुछ लोग यादों में नहीं दिलों में रहते हैं और हमेशा रहते हैं। और वो तो अकलौती दुनिया थी इस घर की, तो अल्लाह पाक बस उसको करवट करवट जन्नत दे, आला मकाम दे। और बहुत सारी दुआएं हैं इस घर के लिए भी, उसकी बहन के लिए, माहम रहमान के लिए भी, और उसकी वालदा के लिए कि अल्लाह पाक इनको सब्र दे और हिम्मत ताकत दे। इसी तरह से ये उसका ख़त्म दिलाती रहें, उसकी यादें दोहराती रहें हमेशा। बहुत शुक्रिया निर्मल जी, थैंक यू। अल्लाह आप भी सलामत रहें, खुश रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि आज सलमान की दूसरी बरसी है और मेरे जितने दोस्त हैं मुझे प्यार करने वाले, सलमान को प्यार करने वाले, आज सब जमा हैं। तो डॉक्टर तबस्सुम साहब हैं जो गुजरांवाले से आए हैं और बहुत ज़्यादा इनके साथ मिलना जुलना, आपने इनके साथ मेरे टिकटॉक भी देखे होंगे, तो इनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज सलमान रहमान की दूसरी बरसी है और आज दुख भी है, तो एक जो खला हो गया वो पूरा तो नहीं हो सकता, हम उसमें बराबर के दुख में शरीक हैं। अल्लाह ताला उसको जन्नतों में आमीन और आमीन। आप लोगों को सब्र की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। ये मोहम्मद सईद साहब पिंडी से आए हैं सलमान के अफसोस पे, यानी उसकी बरसी पे। तो ये मेरे भाई बने हुए हैं, तो मैं मतलब मुझे हमेशा सलमान के बारे में कभी कुरान पाक भेज देते हैं कि ये मैंने बाजी उसको बख्शा है, कभी कोई उसके लिए चीज़ें ले आते हैं। तो मतलब पिंडी से इतना सफ़र करके आना तो मैं समझती हूँ बड़ी इनकी हिम्मत है। जी क्या कहेंगे आप भाईजान? वालेकुम सलाम। बहन है जी, तो मुझे तकरीबन जितना इनको दुख है ना, समझो वो भी मेरा भांजा बेटा की तरह था, तो उसका बहुत ज़्यादा खला है। अल्लाह इनको सब्र दे। और माँ का जो माँ दुख जानती है वो दूसरा बंदा तो नहीं जानता, लेकिन बराबर के हम शरीक हैं। और मैं ख़ास तौर पर रावलपिंडी से इस बरसी के मौके पर आया हूँ और अल्लाह इनको सेहत दे, ज़िंदगी दे और बच्चे का जो दुख है वो अल्लाह इनका पूरा करे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सईद साहब। हीरो भी हैं महमूद साहब, आज माशाल्लाह इनके साथ अभी मेरी मुलाकात हुई है, मैंने इनका एक ड्रामा किया है, तो आज ये स्पेशल आए हैं सलमान की बरसी पे। मैंने जब इनको बताया तो जितना फल है आज का वो सारा ये लेके आए हैं अपनी तरफ से। जी महमूद साहब आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैडम का जिगर का टुकड़ा था, सलमान हमारा भाई था। अल्लाह ताला उनको जन्नत में उनकी मंजिलें आसान करे और जन्नत में जगह दे उनको, और मैडम को सब्र दे। और हम सब की दुआ है कि अल्लाह ताला इनको ऐसे ही लोगों के साथ प्यार करता हुआ पाए हम इनको, और सलमान भाई के लिए स्पेशल हम दुआ गो है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। साथ जुल्फ़कार राही साहब जो सुल्तान राही साहब के बहुत ज़्यादा उनको पसंद करते थे और उन जैसे लगते हैं और आज भी उनको याद करते हैं, तो इनसे कुछ बात करेंगे। स्पेशल गुजरांवाले से आए हैं। जी जुल्फ़कार साहब। मैडम दुर्दाना रहमान जो है ना, उनका बहुत बड़ा हौसला है, बहुत बड़ा जिगरा है कि आज 2 साल हो गए हैं सलमान बिछड़े हुए, लेकिन ये है कि जो के साथ बच्चे की यादें होती हैं वो तो कभी ख़त्म नहीं होती और ना होंगी, अगली बरसी पर भी नहीं होंगी, उसके बाद भी नहीं होंगी।
تو ان کا حوصلہ ہے کہ یہ مکمل طور پر اپنے آپ کو ایکٹیو رکھتی ہیں، ہر وقت جو ہے نا دوسروں کے بارے جو ہے نا وہ سوچتی رہتی ہیں. تو ہم دعا گو ہیں کہ مالک کائنات مالک کل مولا پنجتن پاک کے صدقے ان کے درجات بلند فرمائے اور جناب آسانیاں پیدا فرمائے. آمین. بہت شکریہ رئیس صاحب. جی ہمارے ساتھ پپی کلیہار صاحب، جو آپ اکثر میرے ساتھ ان کو ویڈیو میں دیکھتے ہیں، اور یہ بھی میرے بھائی بنے ہوئے ہیں، اور میرے ہر دکھ سکھ میں، ہر خوشی غمی میں میرے ساتھ ساتھ ہیں. کہیں میں نے جانا ہوتا تو میں کہتی ہوں پپی جی آ جاؤ ہم چلتے ہیں. جی پپی جی کیا کہیں گے؟ آپ کا تو سلمان بہت لاڈلا تھا. میں دردانہ جی یہی کہوں گا کہ بڑی بڑی مائیں دیکھ کے لیکن آپ میں بہت صبر ہے، اور اللہ پاک آپ کی زندگی کرے کہ دوسروں کو تو چلو وقتی طور بھول جائیں گے، لیکن ماں کا کلیجہ جو ہے نا وہ 24 آور بیٹے کو یاد کرتے. اب بھی آپ کہتی ہیں کہ سلیمان میرے ساتھ ہی ہے، ابھی آیا، ابھی میرے پاس بیٹھا ہے. تو اس سے بڑی کیا مطلب ہے. میں یہی کہوں گا کہ ماں اللہ پاک آپ کو صبر دے، تو اس سلیمان کو مولا پنجتن پاک جنتوں میں گھاٹ دے، اور آپ اسی طرح سکون سے. کے لیے جو ہم لوگ نے لنگر تیار کیا ہے ماشاءاللہ، جو سلمان کو پسند تھا، اسے گڑ والے چاول بہت پسند تھے، میں نے وہ اس کی دیگ بنوائی ہے. اسے پالک گوشت پسند تھا، میں نے اس کی دیگ بنائی ہے. بریانی کی دیگ بنائی ہے، قورمے کی دیگ بنائی ہے، نان منگوائے ہیں. لیکن آج وہ ہم میں نہیں ہے، تو کھانے والے سب میرے ملنے والے، سلمان کو پیار کرنے والے سب لوگ جمع ہیں، لیکن آج ہم میں وہ نہیں ہے، تو بس اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے. دوستو آپ تو سمجھ سکتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اس کی بات شیئر کرتی ہوں، تو کوئی نہ کوئی آپ کو اس کی یادیں شیئر کرتی ہوں. کبھی اس کا کوئی میں برتھ ڈے کا کیک کاٹ رہی ملتی ہوں، کبھی آپ کو میں اس کی برسی کرتے ملتی ہوں. تو آپ لوگوں نے بہت دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو جنتوں میں جگہ دے اور مجھے صبر اور ہمت دے. بہت شکریہ جی. بہت اچھے سنگر پاکستان کے، اور آج وہ بھی سلمان کی برسی پہ آئے ہیں، اور میرا خیال ہے جیسے میں نہیں سلمان کو بھول پاتی، اسی طرح یہ بھی نہیں بھولتے ہوں گے. جی بٹ صاحب. میرے تو سامنے مطلب وہ چھوٹا سا بچہ تھا، بڑا ہوا، اور ابھی تک میرا دل نہیں مانتا، بالکل بھی نہیں مانتا کہ ایسا ہو چکا ہوا. بالکل دوسری برسی ہے اس کی. دردانہ جی ہم تو آپ کے فین ہیں، اور یقین کریں کہ بہت پیار ہے آپ سے. تھینک یو. کیونکہ اس کی وجہ آپ خود بہت پیاری ہیں. تھینک یو بٹ صاحب. مطلب آپ کوئی عام چیز نہیں ہے. بہت شکریہ. یہ آپ کی محبت، آپ کا پیار. آپ خود اتنے بڑے فنکار ہیں، گلوکار ہیں، اور بڑے اچھے انسان ہیں، اور ہمیشہ آپ جہاں بھی ملے ہیں بڑے ادب سے، رسپیکٹ سے، محبت سے. یہ باتیں چھوٹی نہیں ہوتی، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے لیے بہت اہمیت والی باتیں. بہت شکریہ بٹ صاحب. ہمارے ساتھ علی انجم صاحب، جو کہ یہ بھی میرا بچہ ہی ہے، میرا بھائی ہے، اور ان کے ساتھ بھی روٹین میں ملنا جلنا ہے. اور یہ بھی سلمان کو بہت پیار کرتے تھے، اور مجھے علی آتا ہے تو مجھے لگتا ہے سلمان آ گیا. ویسے ہی دروازہ کھولے گا، ویسے ہی چلے گا، ویسے بات کرے گا، تو میں اس کو اپنا سلمان ہی سمجھتی ہوں. جی علی بیٹا کیا کہیں گے؟ السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو آج ہم سلمان کی دوسری برسی ہے. ہم اسی طرح وقت جتنا گزرتا جائے گا ہم ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے آپ کے. اور یہ کوئی اللہ کی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی عکس کسی کے اندر پھینک دیتا ہے. مجھے نہیں پتہ اس بات کا. میرا بھی آپ کے ساتھ محبت تو ہماری کئی سالوں کی ہے، لیکن ایک ڈیوٹی لگی ہوئی کہ آپ سے مل کے جانا، یہ سارا. تو یہ سلسلہ سچی حقیقت تو یہ ہے کہ ہم سب کو واپس جانا ہے. بالکل. کسی نے یہاں اس دنیا میں نہیں رہنا. بالکل. تو ہر کسی کا ایک ٹائم متعین ہے. جی بالکل. اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور اپنی جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں رکھے، اور آپ کو صبر دے کے رکھے. آمین. تھینک یو. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ صدر ہے جی، یہ بھی نیا آرٹسٹ ہے ہمارے ساتھ، اور یہ بڑی ڈیوٹی دیتا ہے اس گھر کی، اور بڑی محنت کر رہا ہے، اور اللہ اسے بھی کامیابیوں سے نوازے. جی صدر کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جی بہت دکھ کی بات ہے، اور بہت افسوس ہے، اور میں تو بہت قریب سے سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ میں نے اپنے قیمتی اثاثے کھوئے ہیں، والد والدہ اور 26 سالہ بھائی اور بہن. تو میں تو ان کا دکھ بہت قریب سے دیکھتا ہوں، تو اس لیے میں کمی تو نہیں پوری کر سکتا، کوشش کرتا ہوں کہ میں کمی محسوس نہ ہونے دوں ان کی. تھینک یو صدر. تھینک یو.